class 10th, first chapter, Rise of Nationalism in Europe. Now, basically, this chapter starts with a picture which is made by Frederick Soru. Now, if you go through this picture, you can see uh, Frederick Soru is talking about the nation states, which all independent nations were there during those days. So, if we go through this picture, first is Statue of Liberty is there. The Statue of Liberty. She is holding a Charter of Right in one hand and Torch of Enlightenment in one hand, another hand. Then crossing in front of Statue of Liberty, nations are there. The people of different nations are there. They are wearing dresses of their own country and holding a different flag. So now, as I'm going to proceed, so we are going to discuss about this. Based on this, question used to be asked in board exam also. Now, what you can do is first we are starting with who was Frederick Soru. It can ask in your board exam as a MCQ. Okay, so Frederick Soru was a French artist. Suppose if it is coming in board exam as a MCQ, so you're going to write your answer. He was a French artist. Okay, and इसने ये जो पेंटिंग बनाई थी वो 1848 में बनाई थी. First print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all age and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. ठीक है, ये सारे के सारे एक लॉन्ग ट्रेन में मतलब एक लॉन्ग क्यू में वॉक कर रहे हैं एंड दे आर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. As you would recall, artists of the time of French Revolution personified liberty as a female figure. Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and charter of right of man in one another hand. Okay, मैंने शुरू में बताया था कि torch of enlightenment उसके हाथ एक हाथ में है, दूसरे में charter of right है. On the earth is the foreground of the image lie the shattered remains of symbols of absolute institution. So foreground on ये है, ये basically they're talking about painter is talking about chartered institutions. So जो absolutist में जो थे, जैसे हम कह सकते हैं कि monarchies थे, it's like a dictatorship, लोगों की बातें नहीं सुनते थे, वो उनको थ्रो करते हैं and they try to establish a republican form of government in their country. In Soru's European vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flag and national costumes. Now, absolute institution मैंने बता दिया, literally a government or a system of rule that has no restraints on the power exercise. Basically, हम history में अगर absolutist institution देखेंगे तो monarchy है, ठीक है, they behave like a dictators. General people have no right, they cannot say anything against them. Okay? अब जो सोरू का जो विजन है वो यूटोपियन विजन है. यूटोपियन विजन का मतलब होता है ऐसा विजन जो बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करता है. ठीक है, मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा, मैंने सबके बारे में अच्छा सोचा. सो क्या वो चीजें एग्जिस्ट करती हैं? किसी भी सोसाइटी में हमको अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग मिलेंगे, खाली अमीर की हम बात नहीं कर सकते हैं. जो सोरू का जो विजन था, फेडरिक सोरू का जो विजन था वो यूटोपियन विजन था. ठीक है, now the leading the procession way past the Statue of Liberty are the United States and Switzerland, which by this time was already nation state. Okay, please underline in your book. यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड उस टाइम पे नेशन स्टेट थे. नेशन स्टेट का मतलब है इंडिपेंडेंट स्टेट्स, और ये किसी मोनार्की में नहीं थे. इट्स लाइक अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर दे आर इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, जो फ्रांस है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास अभी पहुंच रहा है. ठीक है, सो वेरी सून इट्स गोइंग टू बी अ नेशन स्टेट. सो जो पेंटर है उसी की बात करता है. फ्रांस identifiable by revolutionary tricolor has just reached the statue. Okay, she is followed by the people of Germany bearing the black, red and gold flag. फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं जो कि ब्लैक, रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग लेके उसको फॉलो कर रहे हैं. इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरू क्रिएटेड दिस इमेज, जर्मनी पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन. हम पैटर्न में प्रोसीड करेंगे तो वी विल रीड अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली. तो उस टाइम पे जब फेडरिक सोरू ने ये पेंटिंग बनाई थी तो जर्मनी एक यूनाइटेड नेशन की तरह एग्जिस्ट नहीं करता था. Flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. तो उसने जब ये पेंटिंग बनाई थी तो लोगों ने इमेजिन किया था, उसने इमेजिन किया था कि जितने भी जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज एंड नेशन है वो सारे यूनाइट हो जाएंगे इस फ्लैग के अंडर में.
Following the German people are the people of Austria, the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia. So फिर जर्मनी के पीछे पीछे ऑस्ट्रिया है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज है, लंबार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. From the heaven above, Christ, saints and angels gaze upon the scene. So अगर हम पिक्चर देखते हैं तो from heaven, who all are gazing upon the scene. So Christ है, saints हैं and angels हैं. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. So question आ सकता है, uh, what does it symbolizes? The Christ, saints and angels, those who are gazing upon the scene, what does it symbolizes? It symbolizes fraternity among the nation of the world. Okay, ये प्लीज याद रखना, ये मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन कर दिया so that if it is coming in board exam you are able to answer. Now this chapter will deal with many of the issues visualized by Soru. ठीक है, सोरू ने बहुत सारे इमेजिनेशन विजुअलाइज किए थे, उसके बहुत सारे ड्रीम्स थे, तो बेसिकली उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe. So nationalism emerge होता है 19th century में, क्योंकि बहुत सारे यूरोप के पॉलिटिकल और मेंटल बहुत सारे चेंजेस कंट्रीज में चेंजेस लेके आता है यूरोपियन कंट्रीज में. End result of these changes was the emergence of nation state in place of multinational dynastic empire of Europe. Okay, प्लीज याद रखना, चेंजेस आते हैं, जो स्वीपिंग चेंजेस आते हैं यूरोप में, इसका रिजल्ट क्या होता है. ठीक है, सो एंड ऑफ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक, अलग अलग डायनेस्टी जो यूरोप में एग्जिस्ट करती थी उनका एंड होता है और एक नेशन स्टेट क्रिएट होता है जहां पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं. Concept and practice of a modern state in which a centralized power exercise sovereign control over a clearly defined territory. ओके, सो बात करता है, एक तरफ नेशन स्टेट की बात करता है, फिर दूसरी तरफ सोरू मॉडर्न स्टेट की भी बात करता है. अ सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर अ क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी. कंट्री में एक सेंट्रलाइज पावर होगी जो कि एक क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी को कंट्रोल करेगी. हैड बीन डेवलप ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ time in Europe. But the nation state was one in majority of its citizens and not its ruler came to develop a sense of common identity and shared history. Okay, तो नेशन स्टेट के बारे में बात करते हैं कि सबकी कॉमन आइडेंटिटी है, लोग आपस में सेम हिस्ट्री को शेयर कर रहे हैं. This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through struggle, through the action of leaders and the common people. This chapter will look at the diverse process through which nations states and the nationalism came into being in the 19th century. बेसिकली जो हमने अभी जो टॉपिक कवर किया, चैप्टर स्टार्ट होगा नेक्स्ट पेज से. सो बेसिकली हमने जो भी कवर किया है वो फेडरिक सोरू की पेंटिंग से रिलेटेड है. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है मैं वो भी शेयर कर रही हूँ. यू कैन राइट और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. Explain Frederick Soru dream in the context of democratic and social republic in France during 1848. Okay, 1848 में उसने पेंटिंग बनाई थी, तो उसका क्या ड्रीम था. In 1848, Frederick Soru, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. Okay, वो करीब 4 पेंटिंग बनाता है जिसमें कि वो विजुअलाइज करता है, उसका ड्रीम होता है कि एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक बेस्ड एक कंट्री होंगी. The first print of the series showed the people of Europe and America, men and women of all age and social classes, marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. Personified liberty as a female figure with the torch of enlightenment in one hand and declaration of the right. डिक्लेरेशन ऑफ राइट नहीं लिखना चाहोगे तो चार्टर ऑफ राइट लिखने से भी चलेगा. ठीक है, शी इज होल्डिंग अ टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट इन अनदर हैंड. इट वाज अगेंस्ट द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, वो मैंने ऑलरेडी बताया, मार्क कर रखा है. In Soru utopian vision, the people of the world are categorized as distinctive nation. वो यूटोपियन विजन में कहता है कि पूरे वर्ल्ड के जो लोग हैं वो अलग अलग नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Group of categories are identified through their flags and national costume. ठीक है, लोग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनके फ्लैग से, उनके नेशनल कॉस्ट्यूम से. He believed that from the heaven above, Christ, saints, and angels gaze upon the scene, leading the procession way past the Statue of Liberty at the United States and Switzerland, which by the time was already nation state. So you have
8 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट लर्न कर लेना, क्योंकि बोर्ड्स में मैक्सिमम यू हैव अ 5 मार्क का क्वेश्चन। ओके, 8 पॉइंट्स हैं, कोई भी 5 मार्क्स 5 पॉइंट्स याद कर लोगे तो एटलीस्ट यू आर गोइंग टू गेट अ फुल मार्क्स। हो सकता है 2 या 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन, 2 मार्कर क्वेश्चन और 3 मार्कर क्वेश्चन ऑल्सो दिस कैन बी आस्क्ड, दिस वाज ऑलरेडी आस्क्ड। जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आ रखे हैं और उनके आंसर मैं कोशिश करूंगी कि बुक में ही पीडीएफ में शेयर करने की, जिससे कि इजी होगा फॉर यू टू रिमेंबर। Now coming to the first is the French Revolution and idea of the nation. Now हम स्टार्ट कर रहे हैं, नेपोलियन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट मेजर चेंजेस अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसकी वजह से पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशन सीन्स में क्या चेंजेस आए थे, या क्वेश्चन आ सकता है मेंशन वेरियस मेजर्स अडॉप्टेड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। मैंने एक और क्वेश्चन इसमें ऐड किया है, ठीक है, सो ये आ सकता है या वो आ सकता है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरी टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिविज्म। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आएगा, आंसर जो होगा वो कॉमन होगा। ठीक है, हो सकता है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट कर देते हैं मगर आंसर समहाउ सेम ही होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को, फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो स्टार्ट होता है वो 1789 में होता है। प्लीज याद रखना, हो सकता है ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ये इमेज है, बिकॉज यू नो हिस्ट्री में एक इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली ये इमेज आ सकता है एग्जाम में, और दिस इज द कवर ऑफ अ जर्मन almanac। ठीक है, प्लीज रिमेंबर, डिजाइन बाय द जर्नलिस्ट एंड्रियास रेबमैन इन 1798। तो ये जर्मन almanac है। ठीक है, नाउ क्रिएट अ फीलिंग ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल, कि हम सारे एक हैं, हमको अपने कंट्री के फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहिए। सो मैं हमेशा जब भी पढ़ाती हूँ बोलती हूँ कि अगर आप अपनी कंट्री से को रिलेट करोगे, इंडिया से को रिलेट करोगे, तो चैप्टर समझना और इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जब शुरुआत की तो मैंने यहाँ ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क कर रखे हैं। इफ यू वांट यू कैन अंडरलाइन मार्क पॉइंट्स इन योर बुक ऑल्सो, गोइंग टू बी इजी फॉर यू टू राइट योर आंसर। French people, they come up with the idea of La Patrie and Lee Citione emphasize the notion of a united community enjoying equal rights. कि उन्होंने कहा कि हम सारे एक ही फादरलैंड के बच्चे हैं, हम सारे एक ही सिटीजन हैं। ठीक है, जब भी हम कोई रेवोल्यूशन करते हैं किसी कंट्री में तो ऑब्वियसली हम बोलेंगे हम सारे एक हैं, हम एक ही कंट्री के सिटीजन हैं। तो इन्होंने भी सेम वर्ड किया, यूज किया है, ला पैट्री एंड ली सिटियोने। कई बार ला पैट्री एमसीक्यू करके एक अलग से भी आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ला पैट्री, और ली सिटियोनी ऑल्सो अलग से आ सकता है। ठीक है, यू शुड बी अवेयर, ला पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड, ली सिटियोनी का मतलब होता है सिटीजन। ठीक है, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उन्होंने कहा कि हम सबका जो कॉन्स्टिट्यूशन हो है पूरी कंट्री का एक ही है। उन्होंने फिर एक नया फ्लैग बनाया, ट्राई कलर फ्लैग बनाया, वो चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग। क्योंकि मोनार्की था तो मोनार्की के अपने फ्लैग्स भी होते हैं, तो उन्होंने मोनार्की के फ्लैग को रिमूव करके एक कॉमन ट्राई कलर फ्लैग बनाया। उन्होंने कहा कि ये हमारी कंट्री का रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ जब गवर्नमेंट स्टैब्लिश होगी उसका ये फ्लैग होगा। State generals were elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly। उन्होंने कहा स्टेट जनरल्स को लोग इलेक्ट करेंगे और उसको हम नाम देंगे नेशनल असेंबली। ठीक है, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ टेकन एंड मार्टर्स कमेमोरेटेड। उन्होंने नए सॉन्ग बनाए, जैसे हम अगर नेशनल सेकंड चैप्टर में कवर करोगे तो बताऊंगी कि इंडिया का जो नेशनल सॉन्ग था वो वंदे मातरम था। ठीक है, हम सारे के सारे लोग जो मतलब लोग जो पार्टिसिपेट करते थे मूवमेंट्स में, पीपल यूज्ड टू सिंग वंदे मातरम। वैसे ही फ्रांस में उन्होंने एक नया सॉन्ग कंपोज किया, सो सारे सारे लोग उसको सिंग करते थे। ओथ टेकन, लोगों ने शपथ ली। मार्टर्स कमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ अ नेशन, सारा का सारा उन्होंने नेशन के नाम पे किया। A centralized administrative system was put in place and it's formulated uniform law for all citizens within the territory। उन्होंने एक centralized administrative citizen बनाया और सारे कंट्री के लोगों को एक यूनिफॉर्म लॉ के अंडर में लेके आए। ठीक है, internal custom duties and dues were abolished with
जैसे हम अब हम आगे पढ़ेंगे तो हम जुल्वरीन के बारे में पढ़ेंगे और सारा पढ़ेंगे। जो इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थे उन्होंने पूरे हटा दिए एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वर अडॉप्टेड। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स को हम एक पॉइंट कर सकते हैं, पॉइंट 6 हम यहाँ से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थे हटा दिए और यूनिफॉर्म वेट एंड मेजर्स उन्होंने अडॉप्ट किए। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि फ्रेंच जैसे हमारी कंट्री में इंडिया में हर 200 किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, तो उन्होंने वहां पे बोला कि हम सारे के सारे जो हैं अपनी चीजें प्रेजेंट करेंगे फ्रेंच लैंग्वेज में। तो फ्रेंच जो होगी वो कंट्री की एक कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन होगी, जिसमें कि हम आप आपस में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यू हैव 7 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसको आप अपने हिसाब से भी स्प्लिट कर सकते हो या मैंने फॉर योर कन्वीनियंस मैंने इसको स्प्लिट कर दिया है, दैट इजी फॉर यू टू रिमेंबर। Now coming to the next is what do the idea of lab patry and Lee Cipioni emphasize? क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बगल में लिख दिए हैं, you can go through it. Now which revolution was the first clear expression of nationalism? So French Revolution. Describe the events of French Revolution which had influenced the people belonging to the other part of the world. अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मैंने बताया था उसमें आएगा कि when Duke Metternich said when France sneezes rest of the Europe catches cold. तो फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो बाकी कंट्रीज उससे कैसे इन्फ्लुएंस हुए। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका आंसर ये है, इसमें मैक्सिमम 3 पॉइंट्स बनते हैं। सो हो सकता है ये 3 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। सो फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू हुआ, हाउ विच इन्फ्लुएंस द पीपल बिलोंगिंग टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लास बिगिन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब। यू हैड जैकोबिन क्लब इन क्लास 9th आल्सो। ओके, जैकोबिन क्लब क्लास 9th में भी था। जो स्टूडेंट्स थे और अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में उन्होंने जैकोबिन क्लब सेटअप करना शुरू किया। The activities and campaigns prepared the way for French armies moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy. धीरे धीरे फ्रेंच आर्मी थी जब इन कंट्रीज में मूव करना शुरू किया, फ्रेंच आर्मी ने हॉलैंड कैप्चर किया, बेल्जियम किया, स्विट्जरलैंड किया, फिर इटली को किया। 79 लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने कहा उनकी कंट्री में विद द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड आल्सो। तो जो उनका नेशनलिज्म का जो मोटो था, जो एजेंडा था, वो खाली उनके फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा, वो बाकी कंट्रीज में भी वहां पे भी वो लेके गए। ठीक है, सो ये 3 पॉइंट्स हैं विच यू हैव टू लर्न बाय चांस अगर ये क्वेश्चन आता है एज अ 3 मार्कर्स। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज, ये सारे के सारे सेम क्वेश्चंस हैं। What steps did French Revolutionary take to create a sense of collective identity among the French people? Basically बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल करीब करीब हर साल 2 मार्कर और 3 मार्कर्स में रहता है। Okay, now next topic which I'm going to start right now is a Napoleon. Now Napoleon, please remember points same रहेंगे, खाली क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्विस्ट होती है बोर्ड एग्जाम में। So if you are able to understand, you're not going to face any problem. Napoleon administrative measures revolutionized the whole world. अब यहाँ पे है कि नेपोलियन ने कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स शुरू किए थे जिसकी वजह से और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड था वो रेवोल्यूशनाइज हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन नेपोलियन कोड और सिविल कोड। ठीक है, आंसर सेम होंगे, आंसर्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती है। तो मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ आंसर्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं फॉर योर कन्वीनियंस। यू कैन मार्क इन योर बुक सो व्हाइल लर्निंग इज इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो द सिविल कोड, अगर नेपोलियनिक कोड आता है क्वेश्चन, आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज नेपोलियनिक कोड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इट डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। यहाँ से शुरू करना। तो जो नेपोलियनिक कोड था उसने कहा कि आपको कोई भी, it did away with all the privileges based on birth. ठीक है, आपको बर्थ के हिसाब से कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलेगी। जैसे अगर आप रॉयल फैमिली में बॉर्न हो डज नॉट मीन कि आपको प्रिविलेज मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, नेपोलियनिक कोड इक्वालिटी की बात करता है कि हर लॉ के सामने हर बंदा बराबर है, चाहे आप रॉयल फैमिली को बिलोंग करते हो या आप पुअर फैमिली को बिलोंग करते हो। नंबर 3, सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। इसने कहा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उस पर आपका पूरा राइट है, कोई भी आपसे आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगा।
कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। जहां जहां पे भी फ्रेंच कंट्रोल था, ये नेपोलियनिक कोड वहां पे इम्प्लीमेंट किया गया। अब वो कौन कौन सी कंट्रीज थे जहां पे नेपोलियनिक कोड इम्प्लीमेंट किया गया, अगर लर्न कर सकते हो तो वेल एंड गुड। मैं स्टूडेंट्स को बोलती हूँ आप एब्रिवेशन बना लो, ठीक है। जैसे इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड, से स्विट्जरलैंड में नेपोलियनिक कोड इम्प्लीमेंट हुआ, इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ। नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, abolished the feudal system and freed the peasants from the serfdom। अब नेपोलियन ने क्या किया, इन एरियाज को कैप्चर किया, यहाँ पे नेपोलियनिक कोड इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। इसने और भी काम किया नेपोलियनिक कोड में। इसने क्या किया कि ही abolished द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम था उस टाइम पे, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट यू शुड बी अवेयर व्हाट इज अ फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम में ये होता है कि आप मैनर्स होते हैं, मैनर्स बेसिकली जमींदार सॉर्ट ऑफ होते हैं, ठीक है। आप पीजेंट्स हो तो आप अपने मानर के अंडर में काम करोगे। जिसमें क्या होता था कि महीने के कुछ दिन आपको अपने मानर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना होता था, और मानर्स उसके बदले में आपको जमीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पीजेंट्स दे आर द पुअर फार्मर्स। जनरली इनके लिए क्या होता था कि कुछ भी शादी करनी है, कुछ चीजें करनी है, ये अपने मानर से लोन लेते थे। अब इसने ये कहा कि इसने जैसे ही कैप्चर किया, ही फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम द सर्वडम एंड मैनोरियल ड्यूज। इसने कहा कि आपको अपने मालिक को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप पूरी तरह से फ्री हैं, ठीक है। कोई भी स्लेव नहीं है। तो ऑब्वियसली हर सोसाइटी में जो पीजेंट्स की जो पॉपुलेशन होती है वो ज्यादा होती है। यू रिमेम्बर क्लास 9th ऑल्सो चैप्टर, जहां पे आपके 80 to 90% पीजेंट्स हैं, और आप उनको बोल रहे हो कि आपको अपने मालिक को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री हो, तो आपको तो बहुत पसंद करेंगे वो, ठीक है। समथिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंज विच ही हैज डन। Now, in the town too, guild restrictions were removed. Basically, जो guild restrictions होते हैं वो business के लिए होते हैं, businessmans के लिए होते हैं। वो division, guild जो होता है वो divisions होता है। इसने सारे के सारे divisions खत्म कर दिए। इसने कहा कि टाउन्स में कोई भी गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। इसका फायदा ये हुआ कि आप अपना बिजनेस फ्रीली कर सकते हो। 7th पॉइंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस वर इम्प्रूव। इसने क्या किया, अपनी कंट्री में ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन इम्प्रूव किया। सारे के सारे अगर चेंजेस हम देखते हैं, जिसकी वजह से लोगों जो बिजनेसमैन है वो प्रॉस्पेरस हो जाएंगे और अपना बिजनेस अच्छे से कर पाएंगे। peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom। तो लोग बड़े खुश थे, peasants थे, artisans थे, businessmen थे, बहुत खुश थे नेपोलियन से कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और हमारे लिए काफी फ्रीडम है। Businessmen and small scale producers of goods in particular begin to realize that uniform law, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब रिजल्ट हुआ उसके चेंजेस की वजह से लोगों ने, जैसे यूनिफॉर्म लॉ था पूरी कंट्री में, सेम लॉ, जहां जहां उसने कैप्चर किया वहां पे भी सेम लॉ लगाई उसने। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स, जैसे अगर हम आगे पढ़ेंगे जोल्वरीन में, तो मतलब अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती हूँ, तो जैसे एल वाला जो आएगा कि अगर पाथ का लेंथ ऑल्सो वेरीज, ठीक है। उसने स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स इंप्लीमेंट किए, ठीक है। कॉमन नेशनल करेंसी की, मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में करेंसी अलग अलग करेंसी कैरी नहीं करनी पड़ेगी। इसकी वजह से क्या हुआ, लोगों का बिजनेस बहुत ही इंक्रीज हुआ और लोग बहुत खुश थे नेपोलियन से, वेरी हैप्पी, ठीक है ना। अगर आप अपनी कंट्री में कोई चेंज करते हो जिसकी वजह से आपसे लोग बहुत खुश हैं, तो अगल बगल वाले लोग सोचेंगे ये चीज हमारे कंट्री में भी, क्यों नहीं ये सेम बंदा हमारा कंट्री भी ऑक्यूपाई कर ले, ठीक है। उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे जो कि बोर्ड में आता है, स्पेशली नेपोलियन कोड अलग आता है, ये दूसरा क्वेश्चन अलग से आएगा नेपोलियन से रिलेटेड। बिफोर दैट आई हैव टू डिस्कस दिस पेंटिंग विद यू, ठीक है। ये पेंटिंग बाय चांस अगर बोर्ड में आती है तो यू हैव टू रिमेंबर द प्लांटिंग ऑफ द ट्री ऑफ लिबर्टी इन जर्मनी, ठीक है। सो ये प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी है जो कि जर्मनी में है। यू हैव टू रिमेंबर दिस इफ इट इज कमिंग इन बोर्ड एग्जाम ना। ये पिक्चर जो नेपोलियन की है इस बार के बोर्ड के सैंपल पेपर में आई हुई है, ठीक है। द लेटर विच इज फॉलिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, ये क्या है एग्जैक्टली ये जो 1813 में लेप्जिंग जो बैटल जिस उसने हारी थी, तो लेटर जो है वैसे लूजिंग हिज टेरिटरीज, धीरे धीरे सारे टेरिटरीज लूज करता है। सो ये लेटर इज द कोरियर ऑफ राइनलैंड लॉसेस ऑल द ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लेप्जिंग,
ठीक है, तो उसने जो भी टेरिटरी कैप्चर की थी उस बैटल में हार गया, और ये टेरिटरी जो है लेटर्स ऑफ टेरिटरी को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, now coming to the next is how did the local people in the areas conquered by Napoleon reacted to French rule? Okay, अब लोग ने कैसे रिएक्ट किया? बेसिकली जो नेपोलियन का मोटिव था टू बिकम अ मास्टर ऑफ वर्ल्ड, आई वुड लाइक टू बिकम अ मास्टर ऑफ वर्ल्ड, नॉट वर्ल्ड एटलीस्ट यूरोप, ही वांटेड टू कैप्चर होल यूरोप। अब उस कंडीशन में जैसे जैसे वो बाकी कंट्रीज को कैप्चर करता जा रहा था, तो लोगों के रिएक्शंस क्या थे? शुरुआत में लोग बहुत खुश थे, उन लोगों ने सोचा कि जो उसने फ्रेंच कंट्री में, फ्रांस में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए हैं, सेम रूल्स एंड रेगुलेशन शायद ये हमारे कंट्री में भी अप्लाई करेगा। और लोगों ने इसको एक तरह से हार, बुक में जो वर्ड यूज किया गया, हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, जो हमारे लिए फ्रीडम लेके आएगा। मगर ऐसा हुआ नहीं। दो तरह ये क्वेश्चन कंबाइन करके 5 मार्कर आ सकता है, या ये 3 और 2 मार्कर भी आ सकता है। व्हाई पीपल डिड नॉट लाइक नेपोलियन? जब इसने ये टेरिटरीज कैप्चर की, लोग उसे नफरत क्यों करने लगे? रीजन क्या था? ठीक है, so let me discuss with you and then I'm going to tell you how to write your answer. Okay. Initially, in many places such as Holland, Switzerland, as well in certain cities like Brussels, Mainz, Milan, Warsaw, French armies were welcome as harbinger of liberty. टेरिटरीज उसने कैप्चर की, फ्रेंच आर्मी को लोगों ने वेलकम किया। ठीक है, लोगों ने सोचा जो इन्होंने अपने कंट्री में इंप्लीमेंट किए हैं, सेम चीजें हमारे कंट्री में भी इंप्लीमेंट करेंगे। बट the initial enthusiasm soon turned to hostility and became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with the political freedom. लोगों को बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि जो उसने अपनी कंट्री में किए हैं वो सेम चीज यहाँ पे नहीं करेगा, एंड द पीपल स्टार्टेड हेटिंग हिम। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने 3 रीजंस दे रखे हैं। ठीक है, बोर्ड में मार्कर करके आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अगर कंट्रीज के नाम अगेन यू कैन मेक अ एब्रिवेशन, ब्रूसेल्स, मेन, मिलान, वॉर्सो, हॉलैंड एंड स्विट्जरलैंड। इसको कोई भी एक एब्रिवेशन बना लो, अगर इजी फॉर यू टू रिमेम्बर। Now why people hate, why he become unpopular? First है increased taxation. जिन भी कंट्रीज को उसने कैप्चर किया वहां पे उसने टैक्सेस बढ़ा दिए। इम्पोज सेंसरशिप, सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि आप मेरे अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो, आप कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते हो, otherwise you will be punished. Third था forced conscription into the French armies required to conquer the rest of Europe. उसने बाकी कंट्रीज के लोग, जो हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के लोगों को जबरदस्ती फ्रेंच आर्मी में ज्वाइन करने के लिए बोला, बिकॉज उसको बड़ी आर्मी चाहिए थी, उसको पूरा यूरोप कैप्चर करना था, उसको बड़ी आर्मी चाहिए थी। इन लोगों को भी बोला कि आप फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन करो। फोर्स कंस्क्रिप्शन मीन्स जबरदस्ती करना। रिजल्ट ये हुआ कि लोग उसे नफरत करने लगे। ठीक है, हर कोई आर्मी तो ज्वाइन करना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज उसका मोटिव था पूरे यूरोप को कैप्चर करना, तो ऑब्वियसली यूरोप को कैप्चर करने के लिए आपको पैसे चाहिए, इसलिए उसने टैक्स बढ़ाया। लोग उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसने सेंसरशिप लगा दी। इस तरह से याद कर सकते हो, आंसर बहुत इजीली याद हो जाएगा। बिकॉज ही वांटेड टू कैप्चर रेस्ट ऑफ द यूरोप, इसलिए आर्मी के लिए पैसे चाहिए थे तो उसने आप टैक्स बढ़ाया। ठीक है, फोर्स कंस्क्रिप्शन, लोगों को जबरदस्ती किया कि आप फ्रेंच आर्मी को ज्वाइन कर लो, और उसने सेंसरशिप लगा दी। ये 3 पॉइंट लिखने से यू विल गेट अ फुल मार्क्स। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेसिकली द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट जो टॉपिक है, इससे कुछ खास आता नहीं है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। अदरवाइज जो बेसिकली जो सेकंड टॉपिक है, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, now ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्लीज इनको याद कर लेना। ये मैच 2 कॉलम करके कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, तो इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, what we know today is Germany, Italy and Switzerland were divided into kingdom, duchies and cantons, whose rulers had their autonomous territory. Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies. Okay, often they even spoke different language and belonged to different ethnic group. सारे के सारे जो जर्मनी थे, इटली थे, स्विट्जरलैंड में थे, इनमें किंगडम्स थे, अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, अलग अलग ग्रुप्स को बिलोंग करते थे। Habsburg Empire that ruled over Austria-Hungary, for example, was a patch of many different regions and people. ऑस्ट्रिया जो हैब्सबर्ग एम्पायर था, जो ऑस्ट्रिया और हंगरी पे रूल करता था,
अलग अलग रीजन्स के लोग, अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे. It includes the Alpine region, the Tyrol, Austria, and Sudetenland, as well as Bohemia, where the aristocracy was predominantly German speaking. एरियाज थे जहाँ पे कि जर्मन स्पीकिंग लोग थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, सुडरलैंड था, बोहेमिया था, यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोग थे. इट ऑल्सो इंक्लूड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेटिया ऑल्सो. तो लोम्बार्डी और वेनेटिया था, इसमें इटालियन स्पीकिंग लोग हुआ रहा करते थे. ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप टुगेदर वाज अ कॉमन एलिगेंस टू द एम्परर ऑल्सो. बेसिकली जो अलग अलग एम्पायर्स थे, कॉमन चीज क्या थी, ये शादी से एक दूसरे से जुड़े हुए थे और जो आपस में कम्युनिकेट करते थे. मैंने कहा था फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उनकी कॉमन लैंग्वेज थे जिससे ये आपस में इजीली कम्युनिकेट करते थे. Now, coming to the next is the aristocracy and the new middle class. Okay, who were the aristocrats? Now, question आता है बोर्ड एग्जाम में, who were the aristocrats? Aristocrats कौन थे? ठीक है. So, aristocrats, socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. Members of this class were united by a common way of life that cut across regional divisions. ठीक है. So ये dominant class थी सोसाइटी में और united by a common way of life. इनके common life होते थे, ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे और आपस में शादियां करते थे. They owned states in the countryside and also town houses. इनके पास बड़े बड़े states होते थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी होते थे और बड़े बड़े घरों के मालिक हुआ करते थे. They spoke French for the purpose of diplomacy and in high society. हाई सोसाइटी में ये बैठा करते थे और इनके जो कॉमन लैंग्वेज, सपोज मैं जर्मन हूँ, मैं मुझे बात करनी इटालियन आदमी से, तो कॉमन लैंग्वेज होती थी वो होती थी उस टाइम पे फ्रेंच. आपस में फ्रेंच लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे. फैमिलीज ऑफन कनेक्टेड बाय टाई ऑफ मैरिज. ठीक है, आपस में शादी से इनकी फैमिलीज जो होती थी वो कनेक्टेड होती थी. नाउ क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर द राइज ऑफ मिडिल क्लास? जब एरिस्टोक्रेट्स हैं, ठीक है, तो मिडिल क्लास को राइज होने की रीजंस क्या थे उस टाइम में? So factor for the rise of middle class is again हम if you remember you must have studied in your junior classes also industrialization. Okay? अब क्या होता है कि इंग्लैंड जो फर्स्ट कंट्री है जहाँ पे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है. तो मैंने जिगजैग करके पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है, तो ये इसी तरीके से मार्किंग स्कीम में था, इसी तरह से मैंने मार्क कर दिए. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but in France and part of Germany states it occurred only during the 19th century. So industrialization इंग्लैंड में second half of 18th century में शुरू होता है, okay, और फ्रांस और बाकी कंट्रीज में 19th century में शुरू होता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज ओनर थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज ओनर थे जिनके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, उन पे काफी इफेक्ट हुआ. जो लोग विलेज में रहते थे उन्होंने क्या किया कि बिकॉज दे कैन नॉट कम्पीट विद द बिग इंडस्ट्रीज, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को बंद किया एंड दे मूव टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज. वो सिटी की तरफ उन्होंने मूव करना शुरू किया. Growth of industrial production in the western and part of Central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of town. ठीक है, अब जब इंडस्ट्रीज डेवलप हुए, बड़े बड़े टाउन डेवलप हुए. ठीक है, and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब नई नई कॉमर्शियल क्लासेस आने लगी जिनका प्रोडक्शन था, जिनका मेन पर्पस था कि वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में बेचेंगे. ठीक है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है तो उससे रिलेटेड लोग नया नया बिजनेस शुरू कर देते हैं. जो नया कॉमर्शियल क्लास डेवलप होता है, ठीक है, जिसका काम था कि नए मार्केट्स ढूंढना और इंडस्ट्रीज में क्लोथ प्रोड्यूस हुए उनको मार्केट में बेचना. Its wake, new social group came into being, a working class population, and middle class is made up of industrial businessman professionals. ठीक है, रिजल्ट ये होता है कि अब आप वर्किंग क्लास पॉपुलेशन होगी जो कि इंडस्ट्रीज में काम करेगी. ठीक है, उसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो बिग बिग इंडस्ट्रीज के ओनर होंगे, बिजनेसमैन होंगे, प्रोफेशनल्स होंगे. तो ये नई चीजें बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, बेसिक रीजन था कि मिडिल क्लास डेवलप होने का इज इंडस्ट्रियलाइजेशन. It was among the educated, the liberal middle class, the idea of national unity following the abolition of aristocracy privilege gained popularity. ठीक है, अब जब मिडिल क्लास डेवलप शुरू हुआ, इट्स लिबरल मिडिल क्लास था,
जो इंडस्ट्रीज के ओनर थे, तो उन्होंने अपने कंट्री में एक बात शुरू की कि व्हाई नॉट वी हैव अ नेशनल यूनिटी यूनिटी ठीक है। उन्होंने बात करना शुरू किया एबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस एंड गेन पॉपुलैरिटी। अब मैं पैसे वाला हूँ, मेरे अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और मैं लोग वही बातें कर रहा हूँ जो लोग पसंद करते हैं। मैंने बात किया कि abolition ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो एरिस्टोक्रेटिक लोग हैं जिनको प्रिविलेज मिलता है उसको खत्म करेंगे। रिजल्ट ये हुआ कि काफी पॉपुलर हो गए, ठीक है, ये लोगों में काफी पॉपुलर हो गए, लोग इनको पसंद करना शुरू किया लोगों ने। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, ये क्वेश्चन आ चुका है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, ये सामने मैंने क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, जिससे रिलेटेड आंसर है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th century यूरोप वर क्लोजली allied टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। एग्जामिन द स्टेटमेंट। ना अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट लिबरलिज्म का डेफिनेशन लिख देना और फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखोगे, यू विल गेट अ फुल मार्क्स। टर्म लिबरलिज्म derive from the Latin root liber meaning free, एक पॉइंट हो सकता है, ठीक है। लिबरलिज्म derive from the Latin word root meaning होता है फ्री। द न्यू मिडिल क्लासेस, ये सेकंड पॉइंट कर सकते हो। लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। सो मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म का मतलब क्या था, ठीक है, अगर हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा लिबरलिज्म का मतलब क्या था, मीनिंग क्या था, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल, ठीक है, हर आदमी के लिए फ्रीडम होगी, ठीक है, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, लॉ के सामने हम सारे बराबर हैं। पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये थर्ड पॉइंट हो सकता है। इसका मतलब ये है कि हम एक गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेंगे जो कि हमारे कंसेंट से होगी, जिसको हम इलेक्ट करेंगे। French Revolutionary liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privileges. ये फोर्थ पॉइंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब था, ठीक है, स्टूड फॉर एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास है उनको खत्म करना और उनको जो प्रिविलेजेस मिले हैं उसको खत्म करना। कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, उनका ये कहना था कि हमारे पास एक ऐसी गवर्नमेंट होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी जो कि पार्लियामेंट से हम इसको इलेक्ट करेंगे और जो हमारे ऊपर रूल करेगी। 19th century liberal also stressed the inviolability of private property also, इन्होंने ये भी किया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसको भी खत्म करना है, ठीक है। तो यू नाउ यू पीपल हैव 5-6 पॉइंट, यू कैन राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, अगर आंसर आता है, मन है तो यहां से भी कर सकते हो, और कुछ और पॉइंट जो मार्किंग स्कीम में इन्होंने ऐड कर रखे। लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स आल्सो, ठीक है। अब मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे लिए लिबरलिज्म का क्या मतलब है, मेरे लिए है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट है, मैं मार्केट फ्रीली अपना सामान बेच सकता हूँ, मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होने चाहिए। Abolition of state imposed restrictions on the movements of goods and capital also. स्टेट्स ने मेरे पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल वो खत्म होने चाहिए। सो यहाँ से भी हम पॉइंट्स उठा सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज, idea of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the idea of liberalism. Examine the statement. Examine liberalism का मीनिंग क्या है, मिडिल क्लास के लिए लिबरलिज्म क्या होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म कैसे देखता है, ठीक है, और मैं अगर बिजनेसमैन हूं तो मेरे लिए लिबरलिज्म क्या है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, प्लीज इसको रेफर कर लेना। What you can do is you can make a notes also, or if you are interested I can share notes with you which I have made, okay, you can ask from me, I'm going to share with you. Now yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage, okay. Suffrage means होता है right to vote, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि यूनिवर्सल सब्रेस हर किसी को वोटिंग राइट मिलेगा। यू विल रिकॉल दैट इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस व्हिच मार्क्ड द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, राइट टू वोट एंड गेट इलेक्टेड वाज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओइंग men. Now they are reminding you of class 9 if you remember. So to get elected and right to vote, only property owing men, if you have property hai, then you can get, otherwise not. Men without property and all women excluded from the political right. ये है पॉलिटिकल स्फीयर में लिबरलिज्म में क्या क्या
नहीं था. Only for a brief period under Jacobin Club did all adult males enjoy suffrage. However, under Napoleonic Code went back to the limited suffrage and reduced women to the status of a minor, subject to the authority of father and husband. नेपोलियनिक कोड में भी लेडीज को वोटिंग राइट्स नहीं थे और कुछ लोगों को लिमिटेड सफरेज मिली थी. Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movement demanding equal political right. Okay. 19th century में even 20th century में women and non-property men they were asking for a voting right. चुनाव ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन किसी भी तरह से what did liberal nationalism stands for. तो यहाँ पे मैं एक तो ये इस तरह से मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया या वो पॉलिटिकल फ्रीडम यूनिवर्सल सफरेज एंड इकोनॉमिक फ्रीडम इस तरह से भी आंसर हो सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है. ठीक है. नाउ बेसिकली लोग लिबरलिज्म की डिमांड क्यों कर रहे थे. ठीक है. लोग क्यों मांग रहे थे कि हमको इकोनॉमिक स्फीयर में फ्रीडम मिलनी चाहिए ना. यहाँ पे तुम्हारे को एक एग्जाम्पल दे रखा हुआ है बुक में. एल जो है मैंने जैसे बताया था कि बिजनेसमैन को फायदा क्यों होने लगा बिकॉज ऑफ नेपोलियन. During the 19th century, this was a strong demand of the emerging middle class. Let us take the example of a German-speaking region in the first half of the 19th century. Napoleon's administrative measure had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. ठीक है. तो नेपोलियन ने जो कैप्चर की थी कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स. ईच ऑफ दीज पजेस इट्स ओन करेंसी. हर 39 स्टेट की हर स्टेट की अपनी करेंसी थी. उनका अपना वेट था. उनका अपना मेजरिंग यूनिट था. A merchant traveling in 1833 from Habsburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through 11 custom barriers and pay a custom duty of 5% at each of them. ठीक है. अगर आप 1833 में हैप्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जाते हो तो आपको 11 कस्टम बैरियर्स पास करनी पड़ेगी और हर एक कस्टम बैरियर पे आपको 5% के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा. ड्यूटीज वर ऑफन लेविड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स. ठीक है. जो टैक्सेस मिलते थे लगते थे वो आपके वेट और मेजरमेंट के सामान के हिसाब से होते थे. As each region has its own system of weight and measures, this involved time consuming calculation. अब जैसे मैं अपना वेट और मेजर्स के साथ साथ मैं कैलकुलेट करूंगी. It's a time consuming process. The measure of cloth, for example, was L, which in each region stood for a different length. Suppose मैं क्लॉथ बेच रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह बेचने के लिए लेके जा रही हूँ. ठीक है. उसका जो मेजरिंग यूनिट है वो भी अलग अलग होगा, वैरी करेगा. An L of textile material bought in Frankfurt would get 54.7 centimeter. अगर मैंने फ्रैंकफर्ट से एक कपड़ा खरीदा है तो उसका जो मेजरमेंट होगा 54.7 सेंटीमीटर होगा. मेंस में 55.1 होगा. न्यूरमबर्ग में 65.6 होगा एंड फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर होगा. अब मुझे एज अ बिजनेसमैन बेसिकली इससे क्वेश्चन आता नहीं है. एल आ सकता है एमसीक्यू में. व्हाट वाज एल. ठीक है. It's a basically a measuring unit textile and L of a textile material, so measuring unit था ये, प्लीज याद रखना. Now आता है डिफाइन जोल्वरीन. जोल्वरीन अगेन एमसीक्यू में आता है. ठीक है. जोल्वरीन वाज अ कस्टम यूनियन. प्लीज याद रखना. In 1834 a custom union or zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. Union abolished tariff barriers, reduced the number of currency from over 30 to 2. ठीक है. इससे बिजनेसमैन को काफी फायदा हुआ. मतलब आप 30 करेंसीज मुश्किल है आपके लिए. तो 30 करेंसीज उन्होंने 2 करेंसी कर दिया. ठीक है. क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवे फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी. जो उन्होंने रेलवेज बनाए ताकि मोबिलिटी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो जाएगा. हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन. इसके वजह से आपकी मोबिलिटी इजी होगी और जिससे आपका नेशनल यूनिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम. नाउ ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जाम में रिगार्डिंग कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815. European governments were driven by the spirit of conservatism in 1815. Support this statement. Or what do you understand by the term conservatism? Okay.
ये बेसिकली हमारा जो आएगा, मैं इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। यहाँ से बेसिकली जोल्वरीन आ जाएगा, कस्टम यूनियन, ठीक है। एल जो है वो मेजरिंग क्लॉथ यूनिट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स होते हैं वो पुराने थॉट, पुराने चीजों को बिलीव करते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम मार्क कर सकते हैं, कंजर्वेटिव्स बिलीव्स दैट established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved. अब कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि हमारे जो सोशल हियरार्कीज हैं, मोनार्की है, चर्च है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, सबको प्रिजर्व करके रखना चाहिए, ठीक है। दे आर नॉट ओपन टू न्यू चेंजेस। बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो वियना कांग्रेस से रिलेटेड आता है बोर्ड में। हु ऑल मेट एट वियना, वियना कांग्रेस वाज होस्टेड बाय होम। इन क्वेश्चंस के अगर आंसर्स भी आते होंगे तो यू कैन राइट योर आंसर्स। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ वियना कांग्रेस, ठीक है। इन विच ईयर दिस वियना कांग्रेस वाज होस्टेड, ठीक है। सो प्लीज 1815 में, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिखा हुआ है, अदरवाइज यहाँ पे। एंड हु ऑल मेट, अब ये जो हु ऑल मेट एट वियना कांग्रेस, ये एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। तो प्लीज याद रखना, ब्रिटेन, रशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, इसमें से एक रशिया की जगह कोई और कंट्री होगी, ब्रिटेन की जगह कोई और कंट्री होगी। और ये चार अगर नाम अच्छे से याद होंगे तो यू कैन डू मोस्ट ऑफ द टाइम दिस क्वेश्चन इज देयर इन एमसीक्यू। So in 1815, representative of European power, Britain, Russia, Prussia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up a settlement for Europe. ये चारों कंट्री जो हैं वो वियना में मिलते हैं, ठीक है। और अब वो डिसाइड करते हैं कि हमने नेपोलियन को डिफीट कर दिया, अब हम यूरोप में क्या करेंगे, किस तरह का सेटलमेंट करेंगे। कांग्रेस वाज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। जो वियना कांग्रेस था, इसको होस्ट किसने किया था, ठीक है, इसका होस्ट कौन था। तो इसका होस्ट जो था वो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। ये भी कई बार एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। The delegates drew up the Treaty of Vienna of 1815 with objective. ना जो मैंने क्वेश्चन पूछा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। Objective of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War. इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि नेपोलियनिक वॉर से पहले जो नेपोलियन ने जितने भी चेंजेस किए थे उनको अनडू करना, ठीक है। तो उसने जो भी चेंजेस किए थे नेपोलियन ने, उन्होंने मोस्ट ऑफ द चेंजेस को अनडू कर दिया। Now, what are the term of the treaty? उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए। The Bourbon dynasty, which has been deposed during the French Revolution, was restored. ये पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हो, term of the treaty. term of the treaty करके भी एक अलग से क्वेश्चन बोर्ड में आता है। तो बर्बन डायनेस्टी विच हैज बीन डिपोज्ड, ठीक है, जैसे ही नेपोलियन कैप्चर करता है फ्रांस को, फ्रांस का हेड बनता है, वो बर्बन डायनेस्टी को रिमूव कर देता है, ठीक है। बर्बन, यू रिमेंबर, यू मस्ट हैव स्टडीड इन क्लास 9। उसको वापस रिस्टोर करते हैं, ठीक है, बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर करते हैं। फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरी इट हैड अनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। फ्रांस ने जितनी भी टेरिटरीज अंडर नेपोलियन कैप्चर की थी, सारे की टेरिटरीज को, सारे की सारे टेरिटरीज ले लेते हैं। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. फ्रांस के अगल बगल वो बहुत सारे स्टेट्स बनाते हैं, ठीक है, जिससे कि फ्यूचर में दोबारा कोई नेपोलियन पैदा ना हो और अगेन फ्यूचर में फ्रांस अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने की कोशिश ना करे। किंगडम ऑफ, नाउ मैंने एक ऐसा भी काम कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ नॉर्थ, साउथ और ईस्ट और वेस्ट लिखा है, ठीक है। थोड़ा ये कंफ्यूजन होता है कि नॉर्थ में फ्रांस की किसको स्टैब्लिश किया, साउथ में किसको स्टैब्लिश किया, ईस्ट में किसको स्टैब्लिश किया, वेस्ट में किसको स्टैब्लिश किया। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ अगर हम इस तरह बना के करते हो तो इजी होता है लर्न के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसमें लर्न करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, वो क्या करते हैं Kingdom of the Netherlands, which includes Belgium, was set up in the north, ठीक है। so नीदरलैंड which includes Belgium, चाहते यहाँ पे प्लस का साइन करके नीदरलैंड और बेल्जियम को इंक्लूड करते हैं, वो उसके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ फ्रांस को स्टैब्लिश करते हैं। एंड जिनेवा वाज एडेड टू पीडमोंट, ठीक है। पीडमोंट में द साउथ, साउथ में वो क्या करते हैं, जिनेवा और पीडमोंट को ऐड करते हैं फ्रांस के, बीच में फ्रांस है। Russia was given important new territories on its western frontier. वेस्टर्न साइड में वो क्या करते हैं, रशिया ऐड करते हैं, ठीक है। While Austria was given control of northern Italy,
नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट है, ये थोड़ा सा ऐड कर लेना, नॉर्दर्न इटली का जो पार्ट है वहां पे वो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया को कंट्रोल नॉर्दर्न इटली का देते हैं। बट द जर्मन कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। ये चेंजेस है, ये करते हैं ये। नेपोलियन ने 39 स्टेट्स, कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स कहते हैं जर्मन के, उसको ये टच नहीं करते, उसको एज इट इज छोड़ते हैं। ईस्ट रशिया वॉज गिवन पोर्ट ऑफ पोलैंड। ईस्ट में क्या करते हैं, जो रशिया है उसको पोलैंड का कुछ पार्ट दे देते हैं, ठीक है। रशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सेक्सनी, ठीक है, रशिया को कुछ सेक्सनी का पोर्शन देते हैं। The main intention was to restore the monarchies that had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe. इनका मेन जो टर्म्स था, मेन पर्पस था कि जो नेपोलियन ने जितने भी मोनार्कीज को ओवरथ्रो किए थे उनको वापस में रेस्टोर करना और कंजर्वेटिव ऑर्डर को वापस में यूरोप में लेके आना। The conservative regime was set up in 1815 under were autocratic. They did not tolerate criticism. Okay, उन्होंने कहा कि हम किसी भी चीज का, जैसे मैंने यहाँ कंक्लूजन लिखा है, we will not tolerate any kind of a criticism. Sought to curb activities that question the legitimacy of the autocratic government. जिस भी कोई भी अगर क्वेश्चन करता है कि उनकी गवर्नमेंट की, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्या लेजिटिमेसी है, तो उसको कर्ब करना मतलब उसको सप्रेस करना। Most of them imposed censorship law to control what was said in newspaper, book, play and song and reflected the idea of liberty and freedom. उस टाइम में जो भी बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, प्लेस थे, सॉन्ग्स थे, हर जगह उन्होंने सेंसरशिप इम्पोज कर दिया जो कि उनकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन उठा सकते थे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स ऑफ द ट्रीटी हैं, ये उन्होंने टर्म्स लगाते हैं, कुछ चेंजेस लेके आते हैं। ये क्लब ऑफ थिंकर्स हैं, दिस पिक्चर कैन बी आस्क्ड इन यू, प्लीज वियना कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो अक्सर आता है, बहुत बार आ चुका है, एंड यू कैन एक्सपेक्ट लास्ट 2 साल से नहीं आया तो हो सकता है इस बार आ जाए। The memory of the French Revolution nonetheless contribute to the inspired liberal. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. उन्होंने बेसिकली क्या किया था ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस को बुरी तरह से उन्होंने बोला न्यूज़पेपर में और प्ले और बुक्स में आप हमारे अगेंस्ट में कुछ नहीं लिखोगे। तो बेसिकली यही होता है सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी आप पब्लिश नहीं कर सकते मेरे अगेंस्ट में। द रेवोल्यूशनरी, नाउ यहां से जो हम शुरू करेंगे, रेवोल्यूशनरी फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट सोसाइटी। Giuseppe Mazzini, born in Genoa. सीक्रेट सोसाइटी प्लस ट्राई टू अंडरस्टैंड सीक्रेट सोसाइटी का मतलब क्या होता है। सीक्रेट सोसाइटीज इन्होंने स्टैब्लिश की थी, मेन मोटिव था टू यूनिफाई इटली। सबसे पहला गुजीपी मैजनी कोशिश करता है इटली को यूनिफाई करने की। यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम करेंगे तो हम इस दोबारा वापस आएंगे, ठीक है, और ये एक पॉइंट कंसीडर होगा। तो सीक्रेट सोसाइटी थी, अंडरग्राउंड सोसाइटीज थी और ये मोनार्की के अगेंस्ट में काम करते थे। इनका मेन पर्पस था टू यूनिफाई कंट्री। The fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionary and spread their ideas. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. सिक्रेट सोसाइटी का मतलब ये है कि जो वियना कांग्रेस के बाद जितने भी मोनार्की स्टैब्लिश हुई थी, आप उसके अगेंस्ट में फाइट कर रहे हो, आप मोनार्की को थ्रो कर रहे हो, ऑब्वियसली मोनार्की आपको परमिशन नहीं देगी। इस कंडीशन में आप अंडरग्राउंड होके काम करोगे, ठीक है। वन सच इंडिविजुअल वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. सो Giuseppe Mazzini है, ये कोशिश करता है इटली को यूनिफाई करने के लिए, करने की। 18 जिनोवा में बॉर्न होता है 1807 में। He became a member of secret society of Carbonari. As a young man of 24, he was sent exile in 1831. इसको बाहर कंट्री का बाहर निकाल देते हैं, एग्जाइल भेज देते हैं फॉर अटेम्प्टिंग अ रेवोल्यूशन इन लिगोरिया। लिगोरिया में कोशिश करता है इटली को यूनिफाई करने की और इसकी कोशिश फेल हो जाती है और फिर इसको एग्जाइल भेज देते हैं। सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज। ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। इसने 2 और अंडरग्राउंड सोसाइटी स्टैब्लिश की थी, यंग इटली इन मार्सील्स एंड देन यंग यूरोप इन बर्न।
whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and German states. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. ये बेसिकली इससे अगर हम इस पैसेज को देखते हैं तो गुजीपी मैजनी है, बॉर्न इन जिनोवा, याद कर लेना। दो और मैंने अंडरलाइन कर दिए, दो और ये सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करता है, ठीक है। और उसके बाद इसको फॉलो करते हुए बाकी कंट्रीज में भी सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होती हैं। जर्मनी में होती है, फ्रांस में होती है, स्विट्जरलैंड में होती है और पोलैंड। अगेन दिस क्वेश्चन कैन आस्क एज एन एमसीक्यू, ठीक है। तो सीक्रेट सोसाइटी जर्मनी में याद रखना, फ्रांस में ओबियसली, ठीक है, स्विट्जरलैंड में और पोलैंड में सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म होती हैं। अगेन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, who said who said Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. So Metternich said to whom that he is the most dangerous enemy of our social order. Metternich is talking about Giuseppe Mazzini, the most dangerous enemy of our social order. Okay, ये इम्पोर्टेंट है। ये अगेन सारे के सारे मैं क्वेश्चंस डिस्कस करते जा रही हूँ जो कि एमसीक्यू में भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। Now we have come to the next topic is Age of Revolution, or it is also called as a July Revolution. Okay, so July Revolution के मैंने आंसर्स यहाँ कॉर्नर में शेयर भी किए हुए हैं, यहाँ पे मार्क भी कर रखे हैं कुछ, ठीक है। और ये बेसिकली जो इस टॉपिक्स में है, ये बोर्ड एग्जाम में इसमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। Who are the members of the revolution? Okay, as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as Italian, German states, the provinces of the Ottoman Empire, Ireland, and Poland. Okay, who are the members of the? So these are the countries member of. These revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks, and members of commercial middle classes. This is a July Revolution. Let us do it. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अभी डिस्कस करूंगी आंसर, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार आता है। फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830, ठीक है। जुलाई रेवोल्यूशन, व्हाट इज द जुलाई रेवोल्यूशन, एक्सप्लेन अबाउट द जुलाई रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला जो रेवोल्यूशन होता है वो फ्रांस में शुरू होता है 1830 में। Bourbon king, who had been restored to power during the conservative reactions after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries. वियना कांग्रेस की वजह से जो कंजर्वेटिव जो थे, उन्होंने बॉर्बन डायनेस्टीज को रेस्टोर किया था, उसको उठा के ये फेंक देते हैं। Constitutional monarchies with Louis Philippe as its head. अब ये बॉर्बन डायनेस्टी को हटाते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोनार्की है मगर वो उनकी बातों को सुनेगी, जो जो सजेशंस देंगे वो उनको फॉलो करेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश करते हैं और लुइस फिलिप को अपने कंट्री का हेड बनाते हैं। अगेन ड्यूक मेटरनिक सेड when France sneezes rest of the Europe catches cold. ये बहुत अगर मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रखा है क्योंकि भाई ये सेइंग्स हैं ड्यूक मेटरनिक, ठीक है। एक बार पूछता है who said when France sneezes rest of the Europe catches cold. So ड्यूक मेटरनिक said when France sneezes, इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज जब फ्रांस में शुरू होती है बाकी यूरोप, पूरा का पूरा यूरोप उससे इंस्पायर्ड होता है और यूरोप में भी शुरू हो जाता है। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of नीदरलैंड। जुलाई रेवोल्यूशन शुरू होता है ब्रूसेल्स में, जिसकी वजह से जो which led to Belgium breaking away, क्योंकि बेल्जियम जो है यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है, ठीक है। सो यू हैव अ 5 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू, प्लीज गो थ्रू इट। जुलाई रेवोल्यूशन अगर आता है बोर्ड में, यू हैव टू राइट दीज पॉइंट्स। और हु आर द मेंबर्स, ये याद कर लेना, यहाँ से है। Coming to the next is Greek War of Independence, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अक्सर बोर्ड एग्जाम में आता है ना। इसमें से कुछ चीजें तो आज एमसीक्यू आ जाती हैं, ठीक है, और या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करके आता है। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन रीड आउट करूँ, हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है वो ग्रीस को कैसे इंडिपेंडेंट नेशन करती है, डिक्लेयर करती है, ठीक है।
अब इसका मतलब ये मत समझना कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ही खाली एक्सप्लेन करना है, बाकी सारा छोड़ देना है। क्वेश्चन ऐसे होंगे मगर आंसर्स कैन यू सी 6 पॉइंट्स इसमें हैं, ठीक है। जनरली ये 5 मार्कर क्वेश्चन आता है। Now let us start. An event that mobilized national feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. ठीक है, यूरोप के जो एजुकेटेड एलीट थे, जिसके लोगों को मोबिलाइज किया कि हमको फ्रीडम के लिए फाइट करना चाहिए, वो सबसे पहला था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ ग्रीस हैड बीन पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी से जो ग्रीस था वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। ऑटोमन जो है वो प्रेजेंट टर्की है, ठीक है। अभी तो टर्की बहुत स्मॉल छोटा सा कंट्री है, उस समय में ऑटोमन बहुत बड़ा एम्पायर हुआ करता था। The growth of revolutionary nationalism in Europe spawned off a struggle for independence among the Greek, which began in 1821. रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो चल रहा था यूरोप में, इससे ग्रीक्स भी इंस्पायर्ड हुए और इन्होंने अपने फ्रीडम के लिए फाइट करना शुरू किया इन 1821. Nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many Western Europeans who had sympathized for ancient Greek culture. जो कि ग्रीक्स लड़ाई कर रहे थे अपने ऑटोमन एम्पायर में अपने फ्रीडम के लिए, उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था? बहुत सारे जो ग्रीक्स थे जो बाहर रह रहे थे, एग्जाइल थे, उनसे उनको सपोर्ट मिल रहा था, और कुछ वेस्टर्न यूरोपियंस थे जिनकी इनके संग सिंपैथी थी, ठीक है। इनको यह था कि ग्रीक कभी भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं होना चाहिए, ग्रीक को एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए। अब यहाँ पे आता है अगेन poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization. अगेन मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है who lauded, ठीक है। अगेन ये एमसीक्यू में आता है। सो poets and artists lauded Greece as the cradle of European civilization, ठीक है। इनका कहना है कि यूरोप की जो सिविलाइजेशन शुरू हुई ग्रीक से ही शुरू हुई, तो ग्रीक कभी भी ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रह सकता, and mobilized public opinion to support his struggle against a Muslim empire. इन्होंने लोगों को सपोर्ट किया, यूरोप को बोला इसको फाइनेंस करो, इसको हेल्प करो, ये मुस्लिम एम्पायर्स के अगेंस्ट, इसके यहाँ पे नहीं हो सकता, इसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। यहाँ पे आता है इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1825। सो जो इंग्लिश पोएट था लॉर्ड बायरन था, उसने ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए फाइट की, ये खुद भी फाइट करने गया और फिर वहां पे बुखार की वजह से, फीवर की वजह से उसकी 1824 में डेथ हो गई। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन होती है 1832 में, जो कि ग्रीस को रिकॉग्नाइज करती है एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। लेट अस क्विकली डू दीज पॉइंट्स. How did the Treaty of Constantinople of 1832 recognize Greece as an independent nation? An event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. Greece had been part of Ottoman Empire since the 15th century. सेम अगर तुम लोग देखोगे तो ये सेम ही पॉइंट्स हैं, ये वाले यहाँ पे उठा के बोर्ड्स में लिखे गए। मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, और जो रोमांटिक इमेजिनेशन है मैं सेकंड पार्ट में कवर करूंगी। सेकंड पार्ट में मेरी पूरी कोशिश होगी कि एक पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाए। And all the best. Thank you. If you have any queries, I know this is a very difficult chapter and students take a lot of time to understand this chapter. इसमें काफी कुछ learning है। Still, if you have any questions, anything, you can DM me, you can write in a comment, and I'm going to answer your query.